एरर्स के बारे में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, how to find the mean absolute error and how to find the percentage error. Okay, so at first we have to know about the what is error. Only error. What do you mean by error? Error क्या है? So the error is defined as the it is the difference of true value minus measured value. What do you mean from this formula? True value minus measured value. Okay. Suppose that this is a cylinder. Okay. Very nice cylinder. The radius of cylinder. The radius of cylinder is given. The radius of cylinder is given. Suppose that the radius of cylinder is 0.2 meter. When we measure the radius of cylinder, then its value is 0.19 meter. We again measure the value is what? 0.18 meter, but not equal to 0.2 meter. Means the true value is 0.2 meter, but when we measure, means this value is the given. ठीक है, and we measure the when we measured, then we get the value is what? Either this or this. Then there is a difference between the true value and the measured value. That is equal to what? Error. So error, how many types of error and how can you find the error? There are first, second, third and fourth type of error. Means this fourth type of error can be calculated mathematically. मैं बात कर रहा हूँ उस error के बारे में that can be calculated mathematically. ऐसा error जिसको हम लोग mathematically calculate करते हैं. बाकी बहुत सारा होता है, constant error, instrumental error, जो भी चार error है. क्योंकि हम लोग अब बड़े सर ये क्यों नहीं आ रहा 0.2 तो 0.2 ही आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जब उसको मेजरमेंट करते हैं तो या तो कुछ इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो या कुछ एरर इंस्ट्रूमेंट में हो या तो हमको ढंग से करने नहीं आ रहा हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा एरर हो, तो उस रीजन से जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आ पाता है. तो दैट विल बी द एरर. मींस द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. जो ट्रू वैल्यू उसका एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस जो वैल्यू उसका मेजरमेंट करके हम लोग लाते हैं, उस वैल्यू का जो भी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं व्हाट? दैट इज व्हाट? दैट इज द ट्रू वैल्यू. सॉरी, एरर. दैट इज द एरर. तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एरर क्या करना है, हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस व्हाट? मेजर्ड वैल्यू. हाउ कैन यू फाइंड द ट्रू वैल्यू? What is the process of the finding the true value? What is the process of the finding the error? And what is the name of the error? When we call the absolute error, when we call the mean absolute error, and when we find the relative error, and like this. Okay. So at first we are going to discuss about the absolute error. What error? Absolute error. Absolute error. Absolute error is determined in this way. At first, suppose that when you measure anything, then you will get different types of measurement length. Suppose that we want to measure the same way, we want to measure the radius of a cylinder. When we firstly measure by the help of screw gauge, ठीक है, स्क्रू गॉज को मापते हैं हम लोग, स्क्रू गॉज का प्रयोग करते हैं. तो फर्स्ट जब मेजरमेंट करें तो जो उसका वैल्यू आया उसको मान लेते हैं हम लोग A1. A1 इज द फर्स्ट वैल्यू. लेट A1 comma A2 comma A3 comma A4 dot AN be the measured value. Means
जो उसके यहाँ पे रेडियस को माप रहे थे, फर्स्ट में मापे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसको मान लिए a1, सेकेंड बार मापे तो सेम नहीं आया, उसको मान लिए a2, ऐसे समझो, ऐसे मान के चलते हैं। तो r1 का वैल्यू आपका 0.1 आ गया, मतलब 0.12 आ गया, ऐसे कुछ आ सकता है, मतलब सेम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आ रहा है, अलग अलग वैल्यू यहाँ पे, जब ये अलग अलग पार्ट्स को मेजरमेंट करके देख लो, मींस वी हैव this will be the measured value. Then what? Then in this case we find the average. Then a mean. A mean means the average of this measured value. Then we find how? A1 plus A2 plus A3 dot plus an. By what? N, because we have n measured value. This is the what? A mean is the mean value of this measured value, means average value निकालेंगे, and this average value is treated as what? True value. जो भी measured value given रहेगा, उस measured value का जो average निकालेंगे, that is treated as what? True value. That is treated as true value. And the formula of absolute error is same as this, true value minus measured value. The formula of absolute error is also equal to what? True value minus what? True value minus measured value. Absolute error का जो formula होता है, ये भी वही होता है, absolute error is equal to what? True value minus measured value. समझ आ रहा है? ये जो यहाँ का आपके बहुत सारे वैल्यू, जो मेजरमेंट किया हुआ वैल्यू है, उसको लिखना है, उसके बाद क्या निकाल लेना, इस मेजरमेंट का एवरेज निकाल लेंगे, तो जो उसका एवरेज आता है वो आपका वही क्या कहलाता है, उसका ट्रू वैल्यू कहलाता है। यहाँ पे नाउ वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी फाइंड द एब्सोल्यूट व्हाट? एरर। तो it will be what? True value minus measured. In this way we can say here there are true values what? A mean means what? A mean minus what? Measured value is 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, the A mean minus, if you write here A1, therefore it will be what? Delta A1 means true first absolute error. When we find the delta A2, it will be what? A mean minus A2, ऐसा है। फिर हम लोग फाइंड करेंगे इसको, हम लोग डेल्टा A3, it will be what? A mean minus A3। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ट्रू वैल्यू, ये क्या है, ये सब क्या है? मेजरमेंट वैल्यू। तो यदि ट्रू वैल्यू में फर्स्ट में माइनस की तो पहला एब्सोल्यूट एरर आया, ट्रू वैल्यू में दूसरा में माइनस की तो दूसरा एब्सोल्यूट एरर आया। तो यहाँ पे बहुत जितने भी मेजरमेंट वैल्यू लाए हैं, उस मेजरमेंट वैल्यू में कितने एरर आए थे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज व्हाट? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर। अब आया कि एब्सोल्यूट एरर एंड पा सकते हैं, क्योंकि एंड तक यहां पे जाएगा, फाइंड प्रोसीड। देयरफॉर डेल्टा ए एन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए मीन माइनस व्हाट? ए। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अब कौन सा लेंगे? तो इन दैट केस वी फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। वी फाइंड द व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें लोग क्या निकालते हैं मतलब? इन दैट केस इन मीन एब्सोल्यूट एरर हम क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। बताइए क्या होगा? तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा ए व्हाट? मीन। डेल्टा ए मीन क्योंकि इसका मीन। तो दिस इज व्हाट? इसका क्या करते हैं हम लोग? द मीन ऑफ
एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन ट्रू एरर। यहाँ पे पहला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए 1 था, दूसरा था डेल्टा ए 2, थर्ड इज डेल्टा ए 3 डॉट 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 अप टू कहाँ पे डेल्टा ए एन तक इट विल बी डिवाइडेड बाय एन। दिस इज द व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। Okay, now you want to find the what? Now you want to find the what? Relative error. This is the formula mean absolute error. Okay, here we are using the only modulus. Sorry, here we are using only the modulus. Means जब हम लोग वहाँ पे डेल्टा a1 फाइंड कर रहे होंगे, जब वहाँ पे हम लोग डेल्टा a1 d2 फाइंड कर रहे होंगे, तो उस केस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आते हैं। ये हमने लिखा था नेगेटिव पॉजिटिव, उसको यहाँ पे सिर्फ कैसे लिखेंगे? मॉडुलस का प्रयोग करेंगे। नाउ वी फाइंड द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट व्हाट? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये क्या है? रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय व्हाट? ट्रू है। ओके, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा बताइए तो? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू व्हाट? ये आपको मान रहा ये कितना था? डेल्टा ए मीन बाय में क्या बन जाएगा? ए मीन जो था ना, ए निकाला था। दिस इज द रिलेटिव एरर। जब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज एरर, इससे बात करने वाले हैं परसेंटेज एरर। इसमें कुछ नहीं करना है, द रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? परसेंटेज एरर। मतलब इस केस में क्या हो सकता है? डेल्टा ए मीन बाय ए एम था, उसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये चार टाइप के था एरर। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा क्या है? रिलेटिव एरर, चौथा है इसका परसेंटेज एरर। तो ये था इसका एरर के बारे में कहा। ठीक है, वी हैव द fourth formulae. We have some questions. Question is that the length of the rod is measured. Question है the length of कुछ ना सुनेगा the length of rod is measured. The length of rod is measured in experiment was found to be 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 meter and 2.48 meter. Find the average length and absolute error and the each observation and percentage error. हमें सब कुछ निकालना है। बोले यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे दिया? I repeat, the length of a rod is measured as in experiment was found to be 2.48, 2.46, 2.59. अच्छा क्या कहते हैं? दिया बोल फर्स्ट यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट किया, तो मैं इसको मानेंगे क्या? L1 मान लेंगे। L1 इज इक्वल टू 2.48 मीटर। ओके, L2 इज इक्वल टू व्हाट? मींस when we measure the length of the rod, first we get 2.48, second we get 2.46 meter, third we get 2.49 meter. Okay, fourth we get 2.48 meter, impossible. And fifth we get what? 2.45 meter. This will be the value. This is the value. You can see here. You can take here 50 minus positive. You can take here 2.50 meter. Okay. This is the 5 major value. At first find the average value. जैसे हम वहाँ पर find किए थे ना, तो इस केस में क्या करना? सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम ये आपका मेजरमेंट वैल्यू व्हेन rod is the length of the rod is measured, then their measurable value is given. First we measure the get L1 L2 ऐसे एक ही चीज को बार-बार नापा गया तो ये अलग-अलग वैल्यू आया। एक ही रॉड को बार-बार नापा गया तो इंस्ट्रूमेंट का गलती हो या पर्सनल गलती हो या फिर चाहे जो भी गलती हो, फर्स्ट टाइम आया 4.8, सेकंड टाइम आया 4.2.46, थर्ड टाइम इतना आया, एक समान नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं। क्या करते हैं? पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज। मतलब जैसे वहां पे ए मीन निकाले थे वैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे? इसका एवरेज लेंथ। द एवरेज लेंथ मतलब एल मीन
इज इक्वल टू व्हाट, इसको बोलते हैं मीन को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एवरेज। एल मीन इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, क्यों 5 तक ही, क्यों क्योंकि इसका वैल्यू कहां पर दिया हो 5 तक दिया हो, दिस इज व्हाट, therefore the L mean is what, the value of L1 is equal to what 2.48, L2 is equal to कितना 2.46, L3 2.49, L4 okay also 2.48 and L4 is what 2.50 divided by 5. You can find here L mean. Add this. After adding, you can get 8. कितना होता तो? जब कितना हो 0, 8, 9, 7, 8, 9, 17, 17 और 6, 23, 23 and 8. कितना हुआ 31, 1, 3, 3 nets, 3 plus 5, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24, 24, 4, 2, 2, 2 to 4, to 6, to 8, to 10, to 12, means 12.41 divided by 5. You can divide here, you get 5 2s are 10, in hands 2, 24, 5 4s are 20, in hands 4, 5 8s are 40, in hands 1, 5 2s are 10. Okay. After dividing we get 2.482. Here you can use the rounding off. Rounding off क्यों? Here is the minimum decimal point will be up to 2 decimal. Therefore it will be equal to what? 2.48. क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग लेफ्ट कर रहे हैं 2 को, तो 2 is the less than 5, तो unchanged 2.48. तो ये बन गया L minimum. What is this? What the value? This value is treated as what? क्या था ना? True value की तरफ. Now we want to find the absolute error. मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ इसका absolute error. ध्यान में आ रहा है? तो बोलो पहला क्या निकलेगा डेल्टा L1. The value is what? L mean. हाँ ना? माइनस क्या होगा L1. बताओ निकाल लो कितना L mean आया है 2.48. कितना माइनस करना L1 कितना है 2.48 इज इक्वल टू व्हाट 0 है, कोई दिक्कत नहीं. डेल्टा L2 ये यहाँ कितना था हम लोग तो सेम होगा ना 2.4. कितना दिया है यहाँ पे L1 L2 कितना दिया है 2.46. बताइए इसका वैल्यू कितना होगा बोलो माइनस प्लस लो कितना आएगा 0.02. ओके. सिमिलरली डेल्टा 3 इज इक्वल टू व्हाट 2.48 माइनस व्हाट बोलो कितना है 2.49 माइनस करो ये नेगेटिव आ जाएगा. यस या नो नेगेटिव 0.01. मेरी बात समझ में आ रहा होगा. डेल्टा L4 निकालोगे कितना आएगा 2.48 माइनस व्हाट क्या दिया L4 2.48 दिया वो 2.48 इक्वल टू व्हाट 0. कोई दिक्कत नहीं. डेल्टा L5 निकालोगे तो कितना होगा 2.48 माइनस कितना 2.50 2.50 इक्वल टू व्हाट माइनस 0.02. तो आप देख पाएंगे जो डेल्टा एरर है एब्सोल्यूट एरर है वो नेगेटिव पॉजिटिव सब में. नाउ वी वांट टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या निकालना चाहते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर. लोकेशन निकालेंगे उसके लिए. तो मीन मतलब डेल्टा एल क्या निकालना मीन. इसके लिए क्या करता है ध्यान में है ना डेल्टा एल का मोड डेल्टा L2 का मोड डेल्टा L3 का मोड प्लस डेल्टा L4 का मोड प्लस डेल्टा L5 का मोड. इन करेंगे लोग बाय क्या करेंगे
5 ध्यान में स्टूडेंट्स को। तो इस चीज को हम निकाल चुके हैं तो अब देखो ये जो हमें निकल रहा है, ये जो डेल्टा एल एम निकल रहा है, मीन निकल रहा है, ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या निकल रहा है मेरा? मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलिए डेल्टा एल का वैल्यू कितना है? 0। डेल्टा एल कितना है? 0.02। डेल्टा एल कितना है? माइनस में, लेकिन हम क्या लिखेंगे? मोड, तो यहाँ पे प्लस में ही लेंगे। ओके, ये कितना है? 0। यहाँ कितना है? माइनस में कितना लिए? मोड लिए, मतलब माइनस में लेना है। 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 2 4 5, कितना आया बता दो? 2 1 4 3 5, मतलब 0.05 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 कटेगा, कितना आएगा? 0.01 इन आएगा। दिस इज द डेल्टा एल व्हाट मीन, तो इट विल बी 0.01। क्या जो मेरा वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या जो आप यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आया है? 0.01 है। वेरी गुड। ये जो वैल्यू है वो डेल्टा एल मीन है। इसको राउंड अप करो तो सब वैल्यू का आता है। मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक कितना है? 2 पॉइंट तक है। मिनिमम डेसिमल पॉइंट कितना है? 2 तक। इसका अर्थ है तुमको, इसका ही है। अब निकालना क्या है हमको? बोलो रिलेटिव एरर। तो फॉर्मूला क्या होता है जो यहाँ निकाला? डेल्टा एल मिनिमम बाय व्हाट? मिनिमम बाय व्हाट? एल मीन। एल, सो डेल्टा एल मीन बाय एल मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। इन था बोल, इसका वैल्यू कितना है? 0.0, तुम्हारा 0.01 एंड द वैल्यू ऑफ एल मीन इज इक्वल टू व्हाट? 2.4 2.48, so 2.48. After dividing you get what? You can check here. After dividing it, you can get जो वैल्यू आएगा, दिस विल बी द रिलेटिव एरर। अच्छा, बात करें परसेंटेज एरर तक, तो कितना होगा? द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इज विल बी व्हाट? देखो परसेंटेज एरर का वैल्यू कितना है, इसको मैं बताता हूं। वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर बोलो ये क्या होगा? जो भी चीजें यहाँ पे दिया है उसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये था तो क्या करेंगे? 100। सॉल्व करो तो देखो, तो एक पॉइंट विल बी कैंसिल आउट, तो इट विल बी व्हाट? 100 into 1, 100 by 248, जो भी आएगा उतना परसेंटेज आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जहां तक हमको लगा ये डिवाइड करने के बाद जो ही ये आ जाएगा 0.40, तो करके देख लेना है 0.40%। दिस इज द व्हाट? परसेंटेज एरर। कैसे करके निकाल सकते हैं। खैर आपको नोट्स सब दिया हुआ है, उसको आप चेक करिएगा, है ना? तो ये आप लोग देख सकते हैं वहां पे। तो ये था तरीका कैसे हम निकालते हैं इन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव। ये जनरल क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब इसमें हम